What do you mean by light? Define it. Source light is the source of energy which help us into Hmm? so light is Seeing source of object. energy. Sir, Light is a source of energy which Helps which in Help us in see any illuminated the object. object. help us to see the objects. Okay, good. light is Now, a small Sir, particle. light is electromagnetic wave. other property, Light is a small Sir, light is particle. electromagnetic wave. electromagnetic wave. sir, light is small packet of photon. A small packet of photons. Do you know photon? So light is that travel in the straight line. Light. क्या बता रहे हो? Light can travel without medium And a straight line. in straight line. Yes. So this is the information. Light we is have light about- is reflected when it strike a hard surface. Okay. So we are going to study the light and some phenomena related with the light. Very common phenomena, that is the reflection of light. You have read in class 8th. 8th class में पढ़ा था reflection. Ninth Yes, sir, sir. ninth में भी पढ़ा था. Yes, sir. Yes, Ninth sir. में reflection कहाँ है light का? नहीं है सर. Eight में पढ़ा था सर. Eight में सर. No, sir, eight में पढ़ा था. में सर हाँ सर, eighth में sorry. 8th में पढ़ा होगा ना? और मिरर वाले में. हाँ? हेलो. yes sir. Yes sir. Sir. Yes, sir. तो 8th क्लास में पढ़ा होगा. तो रिफ्लेक्शन बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When light is When light is striking a hard surface, The back Bouncing bouncing back of of light rays. bouncing of light when it strike a hard surface. Okay, the bouncing of light from not from hard surface, but certain surface get reflect the light. Not all hard surface doesn't mean that a wall doesn't reflect the light. If we have the mirror, some polished surface, then the light reflect back. Just like the any object reflect from hard surface. Any metal object get reflected from the hard surface. Like suppose the wall is there and you hit the rubber ball, then it will reflect. So reflection Yes, sir. from the hard surface is common for all objects, but the light get reflected from only some reflecting surface. Some reflecting surface like a mirror. So this phenomena of reverting back on the same path from which it have been traveled, this is called the reflection of light. So there are two laws which governs this reflection phenomena. Do you know the laws of reflection? Yes sir. yes sir. Sir, angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Do you know the laws of reflection? Yes, sir. Yes sir. हाँ तो बताइए laws of reflection बताइए. Sir, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Correct. This is the one part. Angle of- Yes, sir. incidence is equal to Incidence Incident ray, reflected ray, and normal ray all lie in same plane. lie on a same surface. Second part is the Angle of incidence, angle of reflection, and normal ray all lie on a same plane. okay. Little correction is there, not angle of incidence. The incidence ray, normal Reflected and ray. reflected ray, all should lie in the same plane. All should lie Yes in sir. the same plane. That means
तीनों जो है ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है ना? Yes, हेलो, sir. sir. Yes, sir. तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है ना? तो ये दो पार्ट में है, लिख लो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन राइट डाउन, ये आपका यहीं से शुरुआत होता है। राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, Reflection. and second the incident ray, Reflected normal ray and and normal. normal and reflected ray all should lie in the same plane. Yes, sir. तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी लिख लो। लिख लिया सर। Sir, लिख लिया। हो गया सर। सर लिख लिया Basically these laws are applicable on straight plane surface as well as spherical surface. So in class 8th you have studied the plane surface. प्लेन सरफेस जैसे मान लीजिए टेबल Yes, है, sir. प्लेन सरफेस पे आपने ये कंडीशन अप्लाई की थी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रे इंसिडेंस हो रही है, तो उस जगह पे नॉर्मल खींचेंगे, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे विल बी कॉल्ड द इंसिडेंस एंगल, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल Reflected. द रिफ्लेक्टेड एंगल आर, Yes, sir. I equal to R, ठीक है? But here in class 10th we have to study the spherical surface. Spherical surface. Sphere जानते हैं ना? Yes, Sphere sir. जानते हैं? Yes, sir. Curved. Yes, sir. Hollow sphere. Just give the example of hollow sphere. Hollow sphere के कुछ example दीजिए, बताइए hollow sphere का क्या होता है, कैसा आपने देखा, कोई बताइए उदाहरण hollow sphere का। Coconut shell. Coconut shell. Coconut shell, but not exactly spherical, but you can see the rubber ball, which is hollow, football. rubber ball, or Football. football, Yes, sir. volleyball, basketball, handball, all hollow sphere, ठीक है? ये सभी hollow sphere हैं जिनको आप यूज करते हो गेम्स में। तो ये hollow इस तरह का sphere आपको कल्पना करना है। You have to imagine, suppose you have a small this rubber ball, ठीक है? एक स्मॉल रबर बॉल आपके पास है, स्मॉल तो हेलो Yes, sir. हेलो, हाँ, तो बच्चों कंसीडर द स्पेरिकल बॉल। स्पेरिकल बॉल को जो है कंसीडर करो, और उसको मान लीजिए हमने कट किया, जस्ट वी कट द बॉल। एक हमने जो प्लास्टिक की बॉल ली और उसको कट किया, मान लीजिए हमने उसको दो पार्ट में कट कर दिया, वी कट इन 2 पार्ट्स। तो जो पीस बनेंगे आपके सेमी स्पेरिकल शेप आएगी उनकी, Yes, sir. आधा होगा। तो वो जस्ट लाइक जैसे घर में कटोरी होती है ना, कप, प्याली होती है, Yes, sir. Yes, sir. उस तरह का शेप होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब उसको हमने मान लिए ऐसा करना है कि एग्जैक्टली हाफ नहीं कट किया, उससे थोड़ा कम कट किया, एक पोर्शन थोड़ा सा कट किया, तो छोटी प्याली मिल जाएगी आपको, है ना? Yes, sir. तो उस तरह की कल्पना करिए। स्पेरिकल जो हमने सरफेस, एक स्पेरिकल सरफेस बनानी है, तो हम कैसी कल्पना करेंगे कि स्पेयर से स्पेरिकल सरफेस मींस वी कट फ्रॉम द स्पेयर टू गेट द Yes, sir. स्पेरिकल सरफेस,
बेसिकली वी हैव टू कट फ्रॉम द स्फीयर, हमें स्फीयर से सरफेस काटनी है तभी स्फेरिकल सरफेस होगी। ठीक है, तो स्फीयर से हमने एक सरफेस कट की तो स्फेरिकल सरफेस वो आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसी हमारे पास स्फेरिकल सरफेस हो गई तो हमने उसको दोनों तरफ से कट कर लिया, दो ऐसे पीस बना लिए। ठीक है, अब स्फेरिकल सरफेस में आप ऐसा देखिए, स्फेरिकल सरफेस में ऐसा देखिए कि जो भी स्फेरिकल सरफेस है उसमें एक हिस्सा तो उभरा हुआ होगा और एक जो है दबा हुआ होगा। यस सर। यस जाली सर। होती है, एक तो आउटर सरफेस होगी और एक इनर सरफेस होगी। यस सर। इनर सरफेस वो, यस सर। आउटर सरफेस उभरी हुई कहलाएगी और इनर सरफेस दबी हुई कहलाएगी, है ना? यस सर। यस सर। समझ पा रहे हैं? घर में हो कटोरी रख सकते हो अपने पास में, है ना? यस सर। यस सर। कटोरी रख के Yes, समझ सकते sir. हो, that is spherical surface। कटोरी है तो स्फेरिकल सरफेस है। अब देखिए वी हैव गॉट द स्फेरिकल सरफेस। अब स्फेरिकल सरफेस में हमने मिरर बनाना है। क्या बनाना है? मिरर बनाना है। फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस वी हैव टू मेक द स्फेरिकल मिरर। क्या बनाने हैं? स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल सरफेस जब हमारे पास होगी तभी तो मिरर बना पाएंगे। तो फ्रॉम स्फेरिकल sir. सरफेस वी विल मेक द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस से दो तरह के मिरर बनाए जा सकते हैं। अब जो कटोरी है, अगर मान लीजिए उसको आपने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया तो जिधर पॉलिश करेंगे वही रिफ्लेक्टिंग sir. सरफेस होगी, रिफ्लेक्शन वहीं से होगा। यस यस सर। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? जो पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। तो मान लीजिए आपने आउटर सरफेस को, Yes, sir. कटोरी को पेंट किया है, दैट मींस जो उभरी हुई सरफेस है रिफ्लेक्शन वहां कॉन्वेक्स से होगा। कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। बिल्कुल सही, Yes, मिरर sir. विल बी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। यस सर। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने जो Convex. कटोरी है उसकी इनर सरफेस को पॉलिश किया, दैट मीन रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम इनर सरफेस। कॉनकेव मिरर बनेगा सर। Then यस it सर, will be कॉनकेव concave मिरर mirror। बनेगा। ठीक है, यस तो सर। अब सारे बच्चों को भाई बोलने दो, हैं? निकता हैं, सबको बोलने दो। तो अब ये देखो कि आपको मिरर बनाना है, दो तरह का मिरर बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने एक स्फेरिकल सरफेस ली, स्फीयर से काट कर। कहाँ से लिया? स्फीयर को काटा और स्फेरिकल सरफेस बन गई। उस स्फेरिकल सरफेस में हमें दो तरह के मिरर बना सकते हैं। अगर हमने आउटर सरफेस को पेंट कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया, दैट मींस रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम आउटर सरफेस, देन इट विल बी नोन एज द कॉन्वेक्स मिरर। If we will polish the inner surface, then reflection will take place from inner surface, and this type of mirror will be concave mirror. कॉनकेव मिरर। तो अब बताइए भाई, मैं पूछ रहा हूँ आशीष देवरिया से। आशीष देवरिया, आवाज सुन रहे हो हमारी? आशीष देवरिया, आशीष, आवाज आ रही है? नहीं? अरे सर। यस सर, आ रही है। तो बताओ भाई, तुम इतनी देर में बोल रहे हो, कह रहे आवाज आ रही है। पता नहीं सो गए थे क्या? चलो अच्छा, ये बताओ कि हमने अभी आपको किस तरह से मिरर बनाना बताया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, बताओ। गलत बता रहा है। ये बताओ। फिर दोबारा बस तो है ही। ये है डबल टू 8 3 6 6। हेलो, हाँ आशीष देवरिया, बताओ। आशीष से फिर सो गया? चलो अच्छा, आयुषी कर बताओ। आयुषी, यस सर। आयुषी, हाँ बताओ कैसे बनाएंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, कैसे बनाएंगे?
नहीं समझ रहे क्या आप? एक ऑब्जेक्ट सर, एक ऑब्जेक्ट लेंगे। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, हॉलो स्फीयर लेंगे। हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर लेंगे, उसको कट करेंगे, है ना। हॉलो स्फीयर लेंगे, उसको कट करेंगे तो कटोरी की तरह शेप आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें अगर आप आउटर सरफेस को पेंट कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, देन इट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। और आप इनर सरफेस को अगर पेंट कर देंगे, देन इट विल बी कॉनकेव। गलत होगा फिर। स्मॉल होगा इंग्लिश। सर वन डाउट। हाँ, क्या डाउट बताओ। सर जैसे मिरर में तो सर दूसरी साइड को पॉलिश किया जाता है ना सर? हाँ? क्या डाउट है बोलो। सर मिरर में तो सर पीछे वाली साइड को पॉलिश किया जाता है सर, आगे से रिफ्लेक्शन होता है। पॉलिश्ड सरफेस मतलब जो सरफेस पॉलिश्ड होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की हम बात कर रहे हैं। जिस सरफेस को हम रिफ्लेक्ट जिससे हो रहा है, आपको उस सरफेस को काउंट करना है, समझ रहे हैं ना। पॉलिश मतलब पॉलिश करने मतलब पॉलिश का होता है, जब पॉलिश होती है ना, तो पॉलिश के बैक साइड में आपका कोई लाइट एंटर नहीं करती, फ्रंट से रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब जो सरफेस आप पॉलिश करेंगे या जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, आप ऐसा मानिए जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उस सरफेस को हम कंसीडर करेंगे। अगर हम आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, देन इट विल बी कॉन्वेक्स। इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, देन इट विल बी कॉनकेव। ठीक, पेंट होता है, ठीक है। जो पॉलिश होती है पेंट होता है। तो जब ग्लास किसी हम ग्लास पीस को पेंट करते हैं, जैसे मिरर भी घर में होता है, तो उसको पीछे तरफ से पेंट करते हैं, पीछे साइड पेंट कर देते हैं। तो जिस तरफ से पेंट कर देते हैं उस तरफ से नहीं देख सकते, पर रिफ्लेक्शन उसी सरफेस से होता है। अंदर से तो लाइट, सामने से तो लाइट क्रॉस जाती है, इंटर करती है मिरर के अंदर, लेकिन जो आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होती है? मिरर की आगे वाली। मान लीजिए घर में मिरर लगा आपके, आप मिरर देख रहे हो, तो जिधर से आप देख रहे हो वो वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है या पीछे वाली? कौन सी रिफ्लेक्ट कर रही है? पीछे वाली। आ गया सर, आ गया। कर रहे हैं? आगे सर, आगे वाली कर रही है, आगे वाली नहीं कर रही है, आगे वाली नहीं कर रही, पीछे वाली ही कर रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है जिस सरफेस से होता है, अगर वो सरफेस आउटर है तो कॉन्वेक्स होगा। रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से हो रहा है, अगर वो सरफेस इनर है तो कॉनकेव होगा, ठीक है ना। क्यों भाई? यस सर, यस सर। आपको कंफ्यूजन नहीं है कपिल? नहीं है सर, समझ में आ गया। अच्छा, ना आए तो बता देना। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी द सेम एज फॉर प्लेन मिरर एंड कर्व मिरर। जो कर्व मिरर है और प्लेन मिरर, दोनों के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं कि प्लेन मिरर के लिए अलग हो और इसके लिए अलग हो, सेम होगा। दैट मीन्स when the light will incident at any point on the convex mirror or concave mirror, the same phenomena will take place. That means the angle of incidence will be the equal of angle of reflection, one part, and second the incidence ray, reflected ray and normal, they will lie in the same plane. This will be the same as for the plane mirror as well as convex mirror and concave mirror. ये प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर दोनों के लिए सेम होंगे, ठीक है। समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। आया सर। आया? यस सर। हाँ, तो समझ में आया। तो अब इसमें सेम रूल लगाना है अपन को, ठीक है।
जो हमने उसके ऊपर लगाया था। इसमें आपको जाना है। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ बच्चों, तो ये जो आपके रूल्स हैं दे विल बी सेम फॉर द प्लेन मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, दोनों मिरर के लिए सेम रहेंगे। अब हमें ये देखना है कि इनको हम अप्लाई करके इमेज कैसे बनाएंगे। तो इमेज की प्रॉपर्टी देखें। इमेज बेसिकली कब बनती है, बताइए इमेज कब बनती है? सर जब लाइट रिफ्लेक्ट हो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े। नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट से होकर लाइट जा रही हो और आप वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख में आए, आपके आंख के अंदर लेंस लगा है वहां पहुंचे, Yes, sir. इसकी इमेज बनती है। इसका मतलब है कि किसी रेटिना पर। ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए जरूरी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए जरूरी है कि उस ऑब्जेक्ट को टच करके लाइट जरूर निकले। उस ऑब्जेक्ट से होकर लाइट जब तक नहीं पास होगी तब तक किसी की इमेज नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपना चेहरा मिरर में देखना चाहते हैं, ठीक है, और मिरर पर खूब लाइट पड़ रही है, मिरर पर रोशनी पड़ रही है, लेकिन आपके चेहरे पर रोशनी नहीं पड़ रही है, तो क्या इमेज आपकी बनेगी? चेहरा दिखेगा मिरर में? नो सर। नो नहीं सर। दिखेगा। नो सर। तभी नहीं दिखेगा, करके देखना, नहीं दिखेगा, ठीक है। चेहरा तभी दिखेगा जब आपके चेहरे पर लाइट पड़ना जरूरी है। जब आपके चेहरे पर लाइट पड़ रही होगी और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके चेहरे से मिरर पर जाएगी, तब आपका उसमें इमेज बनेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़नी चाहिए और वो लाइट फिर मिरर में पहुंचनी चाहिए। तो वहां से जो मिरर से जो रेज रिफ्लेक्ट होके जाएंगी वो फिर इमेज बनाएंगी। तो इस तरह से हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े। दैट मीन्स लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स दैट शुड पास थ्रू द ऑब्जेक्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द मिरर। मिरर में प्रवेश करने से पहले लाइट को ऑब्जेक्ट पर जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट से होते हुए मिरर पर जब लाइट जाएगी तभी रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बनेगी, ठीक है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे हमने ऑब्जेक्ट एरो के फॉर्म में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी आप सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे सब एरो के फॉर्म में बनाएंगे। तो एरो का मतलब होता है कि जो ऊपर एरो का हेड है, उस हेड से हम दो लाइट रेज निकालते हैं। हमने पहले ही पढ़ा, आपने जानते हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो वहां से दो स्ट्रेट रेज लाइन्स हम खींचेंगे तो वो लाइट रे का सिंबल होगा। और लाइट रे जब वहां से मिरर में जाएंगी तो मिरर में जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसी पॉइंट पर उस एरो की इमेज बनेगी। यस सर। ठीक है, तो ये इमेज बनाने का प्रिंसिपल है। इमेज कैसे बनाएंगे? तो हम इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हम इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो आज लिखिएगा नेचर ऑफ इमेज। टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ इमेज, यानी किसी इमेज को हम किस तरह से परखते हैं कि उसका कैसा नेचर है। तो आइदर वी विल यूज द मिरर और वी विल यूज द लेंस, ऑलवेज द नेचर ऑफ इमेज विल बी द सेम। नेचर ऑफ इमेज, जिन जिन पहलुओं पर इमेज को हम परखेंगे वो कौन कौन से उसके बिंदु हैं वो देखिए। तो पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ इमेज। क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है तो हमें पोजीशन बताना चाहिए कि कहां पे बन रही है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज।
किस पर्टिकुलर पॉइंट पर बन रही है, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ इमेज। लिख लेना, नेचर ऑफ इमेज में लिखो पोजीशन ऑफ इमेज लिखो। लिख ली सर। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, दूसरा फिर आएगा साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख देना मैग्निफिकेशन। सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ इमेज इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में मैग्निफिकेशन। इसका मतलब यह है कि जो भी इमेज हम बनाते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं कि उसका जो साइज है, उसकी जो लंबाई है, वो ऑब्जेक्ट की तुलना में कैसी है। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट के बराबर बन रही है, तो उसका जब हम रेशियो निकालते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। यस सर, मैग्निफिकेशन। जब कभी इमेज को हम नेचर की बात करेंगे तो फर्स्ट वी विल सी द पोजीशन ऑफ इमेज, देन वी विल सी द मैग्निफिकेशन, एंड थर्ड इज द रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल, इमेज रियल है या वर्चुअल है। वर्चुअल मीन इमेज रियल है या इमेज रियल है या वर्चुअल है। इमेज रियल या वर्चुअल फिर आपको बताना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा, ERECT, और इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड, इमेज इरेक्ट बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ये हमें भी बताना होगा। तो ये चार बिंदु हैं जिनके आधार पे हम डिसाइड करेंगे व्हाट आर द नेचर। इन चार बिंदुओं के आधार पे हम डिसाइड करेंगे व्हाट इज द नेचर। ठीक है बच्चों? यस सर। सर तो ये हमारे इमेज के, जब जो भी हम इमेज बनाएंगे तो उस इमेज का हम इन चार बिंदुओं के आधार पर परीक्षण करेंगे कि उसका नेचर क्या है। अब हम एक एक चीजें एक एक करके इमेज बनाना शुरू करेंगे। तो अब अगले दिन हम आपको शुरू करेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा बच्चों, थैंक यू सर। ये क्या है, बीच में अभी एक दिन सैटरडे को मीटिंग करनी है आपके पेरेंट के साथ भी, तो हम आपको बता देंगे। तो जैसे आप लोग जुड़ते हो तो पेरेंट्स को बैठा लेना पास में, है ना, फादर को। यस सर। यस सर। ठीक है, उनसे Yes, बात हो sir. जाएगी। तो अभी सैटरडे शुरू कर रहे हैं, आज दूसरे क्लास की मीटिंग है, तो आपके क्लास की जिस दिन होगा बता देंगे, ठीक है? यस सर। तो 12 बजे से sir. बात करेंगे। हर सैटरडे को ओके सर। क्लास के पेरेंट्स से बात करेंगे, ठीक है? ठीक बच्चों हैं। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।